Hear me? Yes, I can hear you. Yeah, please tell me. Yeah, so I was saying that I'm here today because I feel like I'm not able to manifest a partner in my life, and I've noticed a certain pattern. Yeah. Whenever I've, you know, Because you liked have a noticed the pattern, that is why it is repeating. exactly. Yeah. So the pattern is that every guy I like is emotionally unavailable, and the one who is emotionally available is not financially compatible with me. Okay. Yeah. Financially compatible as in? As in, he's not ambitious as I am. He doesn't like have certain goals in life, and so I'm basically looking for people through an arranged marriage setup, and every time I like somebody who's emotionally available, I feel that he's the perfect match. Financially, like, they're not at par with my family, or he's not as ambitious as I am, or to an extent where it feels compromising. You believe in God? I do. Wonderful. Don't worry now. Leave it to Him. Point one. I've been looking for a partner for almost 2-3 years now, and this pattern has constantly been repeating. And because when I find someone, he's emotional. Right now, you are not asking. You do not know how to ask. Yeah. You're only focusing on what is happening. Okay? But when you start asking, that is when you will start receiving. So ask for what you want. How? वेरी सिंपल. भगवान जी, मैं चाहती हूँ कि ऐसा मेरे जीवन में कोई आए जो जीवन भर मेरे से प्यार करे, जिसको मैं जीवन भर प्यार करूँ. हम मिलके खूब कमाएं, हम मिलके बहुत अच्छे से हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को पाले. एज सिंपल एज दैट. नाउ वंस यू मेक दिस प्रेयर, वंस यू आस्क कि भगवान जी आप मेरे को ये सब मेरे से करवा देना, ठीक है. नाउ यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विथ योर सेल्फ. ओके. फॉर एनीबडी जिसको एक पार्टनर चाहिए, वो लोग क्या करेंगे कि जैसा पार्टनर उनको चाहिए वैसे वो रहने लगेंगे. अब जब आप अपने आप को लवेबल बनाओगे, आप अपने आप को पैशनेट बनाओगे, आप अपने आप को वैसे ही बनाओगे जैसे आप एक पार्टनर चाहते हो, आप उस एनर्जीज के साथ अलाइंड रहोगे, और क्योंकि आप उस एनर्जी के साथ अलाइंड हो, वो सारी चीज़ें आपके साथ होंगी. This I agree that I kind of don't love myself, and I don't know what to try to start loving yourself. Like, I don't know. It is very simple. Till now you have been finding faults in yourself and in others. जब तक आप दूसरों में उनके निर्गुणताओं को ढूंढते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तलाशते हैं, वही चीज़ें आपके जीवन में होती जाएंगी कि आप अपने भी वो सारे. अब बात ऐसी है कि इस जीवन में हर कोई में कोई ना कोई कमी रहती है. अब आप बस उन्हीं चीज़ों को पकड़ो ना जो आपको पसंद है, ठीक है. मान लो कि मैं एक रेलवे स्टेशन जाता हूँ, वहाँ पर भी मुझे कमियाँ दिख जाएंगी. मैं एक मंदिर में चला जाऊँ, वहाँ पर भी मुझे कमियाँ दिख जाएंगी. हर किसी में किसी ना किसी को कमियाँ दिखती हैं, ठीक है. भगवान भी आके सामने खड़े हो जाएंगे ना, हम उनमें भी कमियाँ ढूंढ लेंगे. अब बात यह है कि आप जब उनमें वो खूबसूरतियाँ ढूंढने लग जाओ, आप दूसरों की खूबसूरतियाँ ढूंढने लग जाओ, आप बस उन्हीं चीज़ों पर फोकस करो, अपने आप की खूबसूरती पर आप फोकस करो. खूबसूरती मतलब बोथ फिजिकल एंड मेंटल ब्यूटी. राइट. ठीक है. नाउ व्हाट विल स्टार्ट टू हैपन इज योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ गुड थिंग्स अबाउट अदर्स. ठीक है. अब एक बार आप दूसरों के लिए और खुद के लिए अच्छा देखने लगोगे ना, यू विल नॉट माइंड सो मच अबाउट द इम्परफेक्शंस. अब उसमें ऐसे होगा कि यू विल स्टार्ट फॉलिंग इन लव विथ योर सेल्फ. अब एक बार यू आर इन लव विथ योर सेल्फ, आप किसी से नाराज ही नहीं रहोगे. क्यों? क्योंकि यू फाउंड लव विद इन योर सेल्फ. अभी कोई और मेरे को खुश करे, कोई और मेरे को ये करे नहीं रह जाएगा ना जीवन में.
Right, because every time, like through parents, whenever a nice guy came who was financially settled also, and initially, like एक दो महीने हमेशा they put their best foot forward, so there is lot of compatibility there. But eventually, I start finding out that they are emotionally available. So this is the pattern that. Emotionally available, unavailable is secondary. Okay, you're focusing on that because you want it. Okay, anything has to be both ways. अब कोई भी इंसान सिर्फ रिश्ता देखने आ जाए वो थोड़ी प्यार जताना शुरू कर देगा. आप किसी के घर चले जाओगे, हाँ तो तेरी दुख भरी कहानी मेरे को सुना दे, क्यों करोगी? पागल हो क्या? है कि नहीं? वो भी सोचेगा ये क्या यार, ये बैठे बैठे ये सारी चीज़ें पूछ रही. तो अब आपका इमोशनली अवेलेबल मतलब वो मेरी सारी पंचायत सुने, रोए मेरे साथ, मेरे कंधे पे. वो ऐसा क्यों ही रखना है कोई भी रिश्ता? हट, मैं तो दूर भाग जाऊँ ऐसे रिश्ते से. नहीं, when I say emotionally available, मतलब he should have time to talk to me. Everything will be sorted. Okay? It is your thinking कि आप कैसे मैनेज करती हो. अब देखिए, पहले आपको मैंने कॉल किया था, ठीक है, आपने बोला शाम में इतने बजे के बाद ही मैं अवेलेबल रह पाऊंगी, है ना. उसके बाद आपने डिज़ायर किया कि ये कॉल जल्द से जल्द आपकी हो जाए. अब आपने खुद टाइम निकाला. अब जहाँ पर भी आप काम कर रही हैं, लंच ब्रेक लिया, क्या किया मेरे को नहीं पता, बट आपने खुद समय निकाला. उसी तरह क्यों समय निकाला? बिकॉज दिस इज गोइंग टू ऐड वैल्यू इन योर लाइफ. इससे तुम्हारे जीवन में एक सुधार आएगा, एक बदलाव आएगा. वो चीज़ें पता होने की वजह से आपको एक भी पल उसमें वेस्ट करना नहीं है, इसीलिए आपने टाइम निकाला. उसी तरह जब सामने वाला बंदा देखेगा कि मेरे को यहाँ से इतना प्रेम मिलता है, इतना मेरी केयर होती है, वो क्यों ही अपना समय कहीं और बेकार करेगा. दोस्तों के साथ भी नहीं फिरेगा, क्योंकि जो उसको बाहर नहीं मिल रहा वो उसको घर पे मिल रहा है. आप चाहे कहीं पर भी चले जाओ, इन द एंड ऑफ द डे यू वांट टू कम बैक होम एंड लाई डाउन ऑन योर बेड. नींद तो आपके ही बिस्तर पे आपको अच्छी से आएगी. चाहे आप कोई भी 5 स्टार होटल में हो, आप जब वापस घर आके सोगे आपको लगेगा हाँ यार, घर की नींद तो घर की नींद है कि नहीं. वो एक सुकून जो मिलता है, वो सुकून जब आप किसी इंसान को देते हैं तो वहाँ से तो वो होगा. अब आप उसकी नुक्स निकालो. शादी के बाद भी मैं बोल रहा हूँ, अभी से आपको प्रिपेयर अपने आप को करना पड़ेगा. एक आप उस फ्रीक्वेंसी में रह जाओगे ना, तब जाके अगर आपकी शादी होगी तो वो आपके लिए अच्छा है. अब आप खुद ऐसे डाइसी रहोगी. डाइसी मतलब कि वो मेरे को अभी से ही टाइम नहीं दे रहा, अभी से. आप ऑलरेडी कंप्लेनिंग मोड में हो, वो कुछ भी कर लेना तो आपको कभी, यू विल ऑलवेज बी इन लैक. मेरे पास जितना भी धन है, मान लीजिए कि मैं 100 करोड़ 1000 करोड़ की सोचता हूँ, अब मेरे पास कितने भी करोड़ हैं, मैं अगर मानूंगा कि मैं वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, मेरे को मिला ही नहीं, तो इट इज़ लाइक नो, आई विल ऑलवेज बी इन लैक. बट मेरे को अभी इतने करोड़ मिल गए, भगवान जी धन्यवाद. उस चीज़ के बारे में मैं सोचता रहूँगा, आगे भी करोड़ों में मिलते रहेंगे. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? It's just that I'm so tired of. Why are you so tired of? So many No, people. don't talk to anybody. Because I'm 28 and my parents are also getting tensed. Yeah, why? And they keep See, seeing on Shaadi and कुछ apps and everything. And every 10 days मुझे पकड़ा देते हैं कि इससे बात कर. Then I don't like एक the काम way he करो ना, talks. सुनो I ना, don't सुनो like सुनो सुनो, ये पूरी पुराने बातें भूल जाओ. मैं क्या करता हूँ पता है? मैनिफेस्टेशंस कितनी जल्दी जल्दी काम करती है पता है क्या? आज सुबह मैं घर से निकलता हूँ, मैं सोचता हूँ चलो कैब करके चला जाऊँगा, जाते जाते सो जाऊँगा, आते आते सो जाऊँगा. अब मेरे को कैब नहीं मिलती. अब वो कैब नहीं मैनिफेस्ट किया तो मैं सोचता हूँ कि यार कोई चलाना पड़ेगा, चलो इसमें मेरा ही भला है, तो मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा, निकल जाऊँगा. अब जब मैं निकल जाऊँगा, मैं अच्छे अच्छे गाने सुनते सुनते किसी तरह पहुँच जाता हूँ. मुझे पता है कि वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी, बट मैं बोलता हूँ कि आज बिल्कुल आराम से मंदिर के पास ही आप पार्किंग दिलवा देना भगवान, ठीक है, घर से निकलने के बाद. और अब मेरे दिमाग में रहता है कि भगवान को बोल दिया तो पार्किंग मिल ही जाएगी. ऐसे होगा ना कि उस समय जब मैं पहुंचता रहूँगा, या तो मैं किसी ट्रैफिक में 5-10 मिनट अटक जाऊँगा. अब ये भी प्रोसेस ही है. अब जब तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा ना, उसी समय कोई और गाड़ी निकालेगा और उसी समय मेरी गाड़ी वहाँ जाके लग जाएगी. और ये मेरे साथ बहुत लोगों के साथ होता होगा, आपके साथ भी हुआ ही होगा. हुआ है कभी ऐसे कुछ? हुआ है. बहुत सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी की है. करेक्ट. तो सुनो सुन लो,
तो ये कहानी का बताने का रीज़न ये है कि वहाँ पे हमारे दिमाग ने डिज़ायर किया और हमने बिलीव किया कि मिल जाएगा यार, भगवान संभाल लेंगे। करेक्ट। उसी तरह हर हफ्ते मेरे हाथ में एक फ़ोटो पकड़ा दे रहे हैं के बदले में आज हो जाएगा भगवान, आज आप किसी से करवा देना, कोई परफेक्ट मैच मिल जाए, ठीक है। बट बात मेरी आप नहीं सुन रही, नहीं समझ रही जो मैं आपको बोल रहा हूँ। बात ये है कि जब आप थोड़ा सा समय ले लो, 1-2 महीना और ले लो, 1-2 महीने किसी से बात मत करो, अपनी सारी ट्यूनिंग कर लो ना दिमाग में, तब तक प्रैक्टिस करो। 10-15 दिन में प्रैक्टिस होने लगेगी, ग्रेटफुल फील करने लगोगी और ज़्यादा खुश रहने लगोगी। जब खुशी वाले वाइब्रेशन में रहोगी, खुशी वाली फ्रीक्वेंसी में रहोगी, तो वैसे ही खुश खुश लोग मिलेंगे। अभी रिजेक्टेड डिजेक्टेड वाली फ्रीक्वेंसी में मिलोगी, वैसे ही लोग रिजेक्ट करते रहेंगे और वैसे ही रिजेक्टेड लोग मिलते रहेंगे। तो अपने आप को ऐसे मजबूर हालातों में क्यों डालना है? समझ गए। तो कितना समय लगता है फ्रीक्वेंसी सेट करने? थोड़ा सा समय, आज मान लो आज से सेट हो जाएगी तो एक हफ्ते में यू विल स्टार्ट अचीविंग व्हाट यू वांट। वंस यू अचीव व्हाट यू वांट, यू विल से कि हाँ ठीक है, अभी तो हो रहा है मैनिफेस्टेशन, अच्छा एक पति मैनिफेस्ट करती हूँ। अब वो मिलने के बाद भी उस वर्क करते रहना उस चीज़ पे कि कौन सी आदत उसकी मेरे को समझ नहीं आ रही, कहाँ पे मेरे को इम्प्रूव करना है, कहाँ पे उसको इम्प्रूव करना है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो अपने आप खुश रहोगी, है कि नहीं? राइट। ऐसे होता है। अब जैसे I manifested money in my life, like until 3 months ago I was making 1/3 of what I was making today. Wow, But then congratulations. Today, yeah, thanks. So let's say for example, 3 months back I was making 50,000 and today I'm making 150K. Wow. Three Wow. times. Wow. Wow. Yeah, and I manifested money. Like I was obsessed with working hard. मैंने दिन रात एक कर दिया work करने में. Okay. But today when I'm making that 150, मेरे पास एक संडे नहीं होता है अपने आप के लिए, because I'm taking 4 different jobs to make that money. It is your fault. So what I'm trying to understand is, although I manifested the money, I did it the wrong way. So what would It you is not suggest? the wrong way or the right way. It is एक दाल हम बना रहे हैं। अब दाल को मम्मी क्या करते हैं, कभी कभी ना ऐसे हाथ में 1-2 बूंद लेंगे, चखेंगे। करेक्ट। उसमें क्या होता है, नमक मिर्ची का पता चल जाता है। या हम कोई कुछ खा रहे हैं, हम देखते हैं कि चटनी में नमक थोड़ा सा कम है, तो हम क्या करेंगे, डाल लेंगे। अभी आप क्या कर रहे हो, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेशन, आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर मनी, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पुटिंग माई डे एंड नाइट। हु इज आस्किंग यू टू डू ऑल ऑफ दैट? वंस यू अफर्म दैट मनी कम्स टू मी ईजीली, मैं बोलता हूँ कि पैसा मेरे जीवन में बहुत आसानी से आता है, लोग खुद पैसे भेजते जाते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि भगवान जी, पहले मैं भी करता था, 20-20 कॉल ले लेता था, मेरे को लगा कि यार ऐसे नहीं जीना है मेरे को जीवन। Exactly, मुझे अभी ऐसे ही लग रहा है, like I सुन don't. लो। तो जब मैंने बोला कि ऐसे नहीं जीना है जीवन, तो मैंने भगवान को बोला, भगवान जी आप ही कुछ आइडिया दो ना। तो अभी ऐसे होता है कि मैंने बोल दिया है, जिसको कॉल करना है आप अपना अमाउंट बता देना, उसमें से जो हाईएस्ट रहेंगे जब मैं पिक कर लूँगा। 2 कॉल वैसे पिक करता हूँ, 2 कॉल नॉर्मल पिक करता हूँ, 2 कॉल हर रेंज में मैं 2-2 कॉल पिक कर लेता हूँ। तो 10 दिन में 10 कॉल में मैं उतना कमा लेता हूँ जितना मैं पहले 20 कॉल लेकर कमाता था। तो जैसे आपने नमक को टेस्ट किया, जैसे आपको रियलाइज़ हुआ कि यार ये स्ट्रेसफुल हो रहा है, तो भगवान को बोल देना कि भगवान जी मेरा काम थोड़ा आसान करवा दीजिए, तो वो आइडिया देंगे। अब हर दिन आप पूछो, हर दिन आप कुछ सीखो, हर दिन आपको कुछ आइडिया आएगा, उस आइडिया पे काम करो। वर्क स्पेस में ही मान लो अभी जा रहे हो ऑफिस में, एक दिन स्ट्रेसफुल रहा, आप अपने दिमाग में बिठा लिया है कि स्ट्रेसफुल रहेगा यार, अब हर दिन सुबह उठ रहे हो वैसे ही जा रहे हो और वो काम बढ़ता जा रहा है। Exactly. अब मान लो कि हर दिन मेरा काम कम होता जाएगा और पैसे बढ़ते जाएंगे। अब मान के ही तो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हो ना, और चीज़ें वैसे ही काम कर रही है। तो अभी ऐसा होगा कि यू विल स्टार्ट बिलीविंग कि मैं बहुत थोड़ा भी काम करूंगी, पैसे मेरे को लाखों में मिलेंगे।
तो ऐसी कोई पोस्टिंग मिलेगी, ऐसी कहीं वो मिलेगी जिससे योर वर्क दूसरे कर रहे हैं, आपको बस उसका लुत्फ उठाना है. You will get a position like that where all your juniors are working. You just have to देख के हाँ ये करेक्शन कर लो, ये करेक्शन कर लो, आराम से बैठ के काम भी हो रहा है. क्योंकि अभी मैं इस तो पोजीशन में हूँ अरे सुनो ना, मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमको वापस वहीं कूदना है गड्ढे में, तो क्या फ़ायदा? मैंने पैसे दिए हैं क्या बात करने को? नहीं तो मैं जब इतना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिससे आपका जीवन आसान हो जाए, आपकी थिंकिंग में थोड़ी हेल्प मिल जाए, क्यों काटती जा रही हो? सॉरी, गो अहेड. द रीज़न व्हाई आई एम टेलिंग यू इज डोंट बी इन अ रश. मेरी उम्र निकल जा रही है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, कमाना तो मुझे अभी है, नींद मैं ख़त्म कर दूँगी, ये सब करके स्ट्रेस लेके फिर सेहत ख़राब कर लोगी और फिर बोलोगी भैया मेरा सेहत ही नहीं मिल रहा, 5 लाख मैं कमा रही हूँ. नहीं, चीज़ों को इट हैज़ टू बी लाइक फन एंड गेम्स. मैं अभी जीवन को बिल्कुल फन एंड गेम्स की तरह ही कर रहा हूँ कि भगवान जी ये भी हो जाए तो ये भी हो जाए. तो अभी बैठे बैठे भी समय नहीं बेकार कर रहा, गहने भी बना रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ, वीडियो भी पोस्ट कर रहा हूँ, 3 काम हो रहे हैं, पैसे यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, वहाँ से भी आ रहे हैं. समझ गए? आप लोग के साथ सिर्फ जहाँ से कॉलिंग के पैसों का मैं शेयर कर रहा हूँ. अब जब आप ऐसे करने लगोगे, जब आप ऐसा ग्रोथ करने लगोगे, आप हर दिन देखोगे कि यहाँ मैं फंस रहा हूँ, ये मेरे को नहीं करना है, यहाँ मैं फंस रही हूँ, ये मेरे को नहीं करना है, तो भगवान को बोलना है कि भगवान जी इसका कोई ईजियर सोल्यूशन दिखाइए ना प्लीज़. ठीक है? ठीक है. अब जैसे मेरे को वो करते हैं, भगवान आइडियाज़ देते हैं, उन आइडियाज़ पे मैं काम करता हूँ. अब मान लीजिए आज मेरी वीडियो नहीं बनी, मैं स्ट्रेस नहीं लेता, मैं बोलता हूँ ठीक है जो होगा होगा. ऐसे ही कोई कॉल आएगा जिसमें कोई बोलेगा मैंने इतना मैनिफेस्ट किया, मैंने उतना मैनिफेस्ट किया, उसी की क्लिप मैं कट करके पोस्ट कर दूंगा और वो हो जाएगा. समझ रहे हो? तो देयर इज ऑलवेज अ ईजियर वे टू डू थिंग्स व्हेन यू डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट इट. Now you're stressing about relation, you're stressing about this, and you have this very thought कि मेरी मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रही. अब जब आपका थॉट प्रोसेस ही नहीं हो रही वाला रहेगा तो कहाँ से होंगी वो? जबकि आपको बस उन्हीं चीज़ों पे सोचना है कि मेरे को करना क्या है. मैं खुश रहना चाहती हूँ. मैं पैसे भी क्यों कमा रही हूँ? खुश रहने के लिए. मैं रिश्ता भी क्यों चाह रही हूँ? खुश रहने के लिए. अब मैं बहुत पैशनेट हूँ पैसे कमाने के लिए, बट मेरा पति नहीं है, उसका ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होगा, उसको शायद उतना स्ट्रेस लेने की आदत नहीं होगी, तो ज़बरदस्ती आप स्ट्रेस ले रही हो इसलिए वो भी स्ट्रेस ले. ये कहाँ की समझदारी है? मैं बहुत पैशनेट हूँ भैया पैसों को लेकर, इसको लेकर, गुड फॉर यू, बट वो नहीं है उसको. अब उसको आराम से मिलते हैं पैसे, तो वो नहीं है. या उसका शायद लाइफ का गोल है कि मैं शांति से अपने जीवन को बिताऊं, तो वैसे बिता रहा है. मैं खुद वैसा ही हूँ, मैं खुद स्ट्रेस ही नहीं लेता किसी चीज़ का. लोग हैरान बौरान होते हैं कि कैसे तू किसी भी चीज़ के बारे में वो नहीं होता क्या. मेरे को पता है भगवान करवा देंगे जब होना है. कभी अप एंड डाउन रहती है सिचुएशन जिसमें मेरे को समझ नहीं आता, मैं बोलता हूँ हाँ पता है कुछ ना कुछ आप करने वाले हो. जैसे परसों रथ यात्रा के समय भगवान ने गहने नहीं पहने, मेरे को मन में पता था. अब बाद में वो सारे चीज़ को मैंने प्रेसिडेंट को बोल दिया कि ऐसा ऐसा किया है. एक आदमी कंट्रोल कर रहा है सारे मंदिर को, अंदर बैठे बैठे एक पुजारी, कि अब से जो भी भगवान पे चढ़ेगा सब मेरे परमिशन से ही चढ़ेगा, मेरे को पसंद आएगा तभी भगवान पहनेंगे, मेरे को पैसे वो करेंगे तभी ड्रेस लेंगे, बाहर से कुछ आएगा नहीं. ये सब कुछ कंट्रोल ना गहनों की तरफ देखना, ये सब नो पैशन नो कंपैशन. जो इस्कॉन का मेन चीज़ था वही ख़त्म होता जा रहा था. अब पहले तो मैं इंटरफियर भी नहीं करता था, मेरे को क्या, भगवान तो मेरे को बाहर मिल गए. बट फिर जब मैंने देखा कि हमारे पुजारी लोग जिन्होंने मेरे को सिखाया वो बिल्कुल ऐसे उदास बैठे हुए हैं कि हम इतने साल से सेवा कर रहे हैं, हमारे ऊपर कंप्लेन पे कंप्लेन करते जा रहे हैं, हमारा वो मुश्किल कर दिया. अब वो बात मेरे को चुभ गई कि जिसने मेरे को इतना वो किया वो बिल्कुल ऐसे हो गए. तो फिर मैंने भी बोला, मैंने कॉल किया,
देखो सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, पर भैया वो लोग क्यों नहीं मैनिफेस्ट करते ये चीज़ें? बस उनके मन में ऐसे ही भाव रहता है कि मैं दास हूँ, दास को तो ऐसे ही दुख झेलना पड़ेगा, तो वो दास जो दुख झेलता है। अब तिरुपति जो बालाजी के दास होते हैं वो सारे ऐसे सोने में लदे होते हैं क्योंकि उन दासों के भाव में रहता है कि भगवान हमेशा हमको ऐसे रखेंगे, तो इसीलिए आप देखोगे कि उनके पास सोना ही सोना रहेगा बदन पे। अब कोई कोई मान लेता है कि हाँ जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास लक्ष्मी जी नहीं रहती, ब्राह्मण है तो ये नहीं होता, ये सारी आपकी मान्यता है। अब आप उन चीज़ों पर विश्वास करते हो तो भगवान बोलते हैं तथास्तु। अब मैं मानता हूँ मेरे जीवन में सभी की कृपा मेरे पे है, मेरी कुल देवी की है, मेरे माता पिता की है, मेरे पितरों की है, मेरे भगवान की है, और भगवान से मिलाया इन सब लोगों ने मेरे को, ऐसे मैं मानता हूँ, तो इसलिए मेरे साथ ऐसे होता है। जगन्नाथ से प्रेम है तो प्रेम है। मैं मानता हूँ कि भगवान की भक्ति मतलब ऐसे वो नहीं पतित पावन, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल वो है भगवान, आपको अमीर बना देंगे भगवान, मेरा मानना ऐसा है। तो मैं जिन जिन से मिलता हूँ मेरे को ऐसे अमीर अमीर भक्ति मिलते हैं। अब वो थोड़े दूसरे माइंडसेट वाले रहते हैं कि नहीं प्रभु हमको तो ऐसे कुंती देवी जैसे रहना है कि हमेशा हम मांगते हैं भगवान से तकलीफ ताकि हम भगवान को याद कर सकें, तो वो तकलीफ़ों में ही रहते हैं क्योंकि वो वही मांग रहे हैं। बट मैं तो मांगता हूँ खुशी खुशी आपको याद करूँगा भगवान, ऐसे तकलीफ़ों में दुख में आपको याद कर करके परेशान नहीं करना है मेरे को। थैंक यू बोलने वाला बच्चा बनना है मेरे को, समझ रही हो? तो ये जो सारे नोशंस अपने दिमाग में बना रखी हैं, कोई भी कहानी से आप रिलेट कर लेती हैं कि हाँ यार, तो फिर वही आपके जीवन बन जाता है। तो इसमें किसकी गलती है? करेक्ट, मैं समझ रही हूँ। I'll just share a small story. Like every time I reject somebody, या जो बहुत बार हो चुका है, I tell my parents कि don't worry, I believe कि मुझे वो परफेक्ट मैच मिलेगा, बी इट फाइनेंशियली, इमोशनली, ये वो, बट दे हैव दिस थिंग इन देयर हेड कि 6 on 10, 7 on 10 चलेगा, यू डोंट हैव टू वेट। बट आई फील कि आई नो आई एम डिजर्विंग। 1 minute प्लीज, 1 minute। हाँ, सो आई वाज सेइंग दैट मैं मानती हूँ दैट आई बिलीव एंड आई नो दैट आई एम डिजर्विंग ऑफ एवरीथिंग दैट आई वांट इन लाइफ, बट I don't like when people say कर ले compromise. अरे मेरी माँ, मैंने अभी क्या बोला? मैं? Exactly, that you will get it. No, you didn't get the point only because you were still focusing on your past. I told you, this time you pray, no, कि ये बार जो मिले perfect match मिले. You never know it will just happen. Why are you still going back to मेरे को लोग ये बोलते हैं? हाँ भैया मैं प्रे करूँगी इस बार मेरे को मिल जाएगा, इतना ही बात होता है, बस इतनी सी बात होती है। फिर मेरे मम्मी ने ये बोला, मेरे मासी ने वो बोला, उनके फूफा ने ये बोला, क्यों करना ये सब बकवास क्यों भर रखी हो दिमाग में? जबकि सॉल्यूशन तुमको बोला गया है और तुम अभी भी पास्ट में ही रहना है, तो क्या फ़ायदा? ऐसे ही करती रहो। जब तुमको बोला गया है कि देखो 1 हफ्ता अपने आप को दे लो, अपने आप की फ्रीक्वेंसीज चेंज करो, अपने आप को थोड़ा माइंडफुल बना लो, चीज़ों को नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, करना ही नहीं है। नहीं भैया पर मम्मी ने ऐसे बोल दिया, डैडी ने वैसे बोल दिया, चाचा ने ऐसे बोल दिया, कंप्लेन करती रहोगी, वैसा ही पति मिलेगा कंप्लेनिंग। नहीं, मैं आपसे आई विल कंप्लेन करती रहो, वैसी ही सास मिलेगी। दोनों मिलके बैठना, फिर कंप्लेन करते रहना सारे जहां की। सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, फिर भी कंप्लेन करना है। मम्मी ने ऐसे बोल दिया, चाचा ने वैसे बोल दिया, इसने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे बोल दिया। व्हाट इज दिस बिहेवियर? I gave you solution just 10 minutes in the call, 20 minutes you're back to the same track. What can God also do? अरे इसको करना ही नहीं है, इसको बस ये सब पसंद है, करने दे, रहने दे, बस ठीक है, ओके। No, I understand what you're saying and I'm going to follow it. Yes, please do. Yes, I will, yeah. Because every minute you are wasting thinking about the past, you are again creating that into your reality. While you could just be excited कि हाँ क्या पता यार आज ही मैं घर पहुँचूँ, ऐसा कोई रिश्ता आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, मेरी शादी अगले हफ्ते हो जाए। होने को कुछ भी हो सकता है, तुम नहीं सोच रही, उसमें दूसरों को ब्लेम कर रही हो, इसने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे बोल दिया। तुम सोचो ना, जब तुम्हारा मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, तुमको ये कॉल लग गया, तुमको वो सारी चीज़ें मिल रही है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो उन चीज़ों पे फोकस करो और सोचो कि भगवान जी आपने इतना दिया, धन्यवाद, अब एक अच्छा पति भी दिला दीजिए, धन्यवाद, मैं भी बहुत अच्छी बन जाऊँ, धन्यवाद, मेरा दिमाग भी क्लियर रहे, धन्यवाद।
Yeah, perfect. I'm going to do that. Yeah. Yeah, don't focus on things that are not making you happy and focus on things Okay. that make you happy. If you're not getting a solution to something, ask God for a solution. He will give you a solution. Don't you think He's capable of doing it? Yeah, 100% he is. Has He not done it in the past? He has. Then why insult Him? Hmm. मैं करता हूँ ना तेरे लिए, क्यों यहाँ जाके ऐसे सुना रही है, ये सब क्यों कर रही है? ऐसे लगेगा कि नहीं? ठीक है, तेरे मन में इच्छा थी, मैंने आंसर्स भी दे दिया, अब फिर भी तू रो रही है, क्या करूँ अब मैं? तेरे को पसंद है रोना तो रो। समझ गई मैं। तो एक भी पल नहीं वेस्ट करना होता उन सारी चीज़ों पे जो तुमको खुशी नहीं दे रही। समझ गया ना? हाँ, समझ कुछ गई। और पूछना है? नहीं, that's it from my side. परफेक्ट। अभी पैसे के लिए भी ऐसे ही सोचना कि धन मेरे जीवन में बहुत आसानी से आता है, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे जीवन में बहुत आसानी से आते हैं। धन्यवाद भगवान कि मैं 1,50,000 कमा रही हूँ हर महीने। भगवान जी ऐसा भी करना कि मैं इजीली भी कमा पाऊँ और काम का कभी मुझे स्ट्रेस ही ना हो। एवरीबडी इन माई वर्क स्पेस लव्स मी, एवरीबडी इन माई ऑफिस लव्स मी, माई आइडियाज़ आर वैल्यूड। ऐसी चीज़ें अपने दिमाग को बोलते रहना और वो सारी चीज़ें रियलिटी होंगी। I will work hard, I will work day and night. You are only doing all of that. I work very easy. अभी भी मैं आराम से काम कर रहा हूँ, ना तो मेरे को कोई हिरस है, ना तो मेरे को वो है। मेरे को पता है कि मेरे 1000 करोड़ आ जाएंगे, तब तक आई एम जस्ट एन्जॉइंग द प्रोसेस। अब आप भी वैसा एक टारगेट सेट कर लो। आप अपने दिमाग को बोलो कि आराम से हो जाएगी, मेरी शादी भी हो जाएगी, इस महल में हो जाएगी, उसमें हो जाएगी, जो आपको करना है करो। होने को कुछ भी हो सकता है, क्या पता आसमान से ही कोई राजकुमार उतर के आए। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सोने को कुछ भी हो सकता है। Yes. मानो ना, विश्वास रखो और अपने आप को सुधारो। पहली चीज़, सारी दुनिया बाद में, खुद जब अपने आप को ऐसे कैजुअल रखोगे, बिल्कुल कूल एंड कंपोज रहेगी, वैसे ही तो लोग चाहते हैं ना पार्टनर। हु वांट्स किट पिट 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 पिट। तुमको मिल जाए, आज शांति शांति रहे, कल से वो बोले कि यार तू पैशनेट ही नहीं है किसी काम को लेकर, उल्टा वो तुमको ये सारी बातें बोले, तुमको कैसे लगेगा? हे राम, ऑलरेडी 3 जॉब कर रही हूँ, अभी क्या पूरा दिन रात काम करवाएगा ये मेरे से? घर मतलब सुकून, घर मतलब सुकून, प्यार मतलब सुकून, पार्टनर मतलब सुकून, माता पिता मतलब सुकून, दोस्त मतलब सुकून, भगवान मतलब सुकून। ये होना चाहिए। ये नहीं कि माता पिता मतलब अभी सुबह उठेंगे, मेरे लिए इतना पका के देंगे, इतना प्रॉपर्टी मेरे लिए छोड़ के जाएंगे। भगवान मतलब ये विश आज फुलफिल करेंगे, नहीं किए तो फिर उनको डबल ड्यूटी पे लगाऊंगी। ऐसे नहीं होता। पैशनेट ही नहीं है भगवान मेरे बारे में। अब तक तो मेरे को प्रेसिडेंट बना देना था उनको। ऐसे नहीं होता। स्टॉप कंप्लेनिंग। You're getting my point? ठीक है भैया। Yeah, I totally get your point and I'm going to work on myself. Yeah, just relax. Enjoy the process. Don't force yourself to do so much. Yeah. Every time you are feeling uncomfortable, ask Bhagwan for a solution. Please give me a comfortable way of doing the same thing, and that will happen. And every time you're stuck somewhere, you still have him. He's doing it for you to get stronger. Had those situations not happened, today we wouldn't have been talking. Yes. Got my point? Yeah, I did. Thank you so much. Stay blessed. May all your wishes and desires be fulfilled. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Most welcome. Thank you for sending the money. खूब कमाते रहो, खूब आगे बढ़ते रहो. जय जगन्नाथ. Sure. Thank you. Stay excited. Hare Krishna. Yeah. Hare Krishna. Shri Krishna Arpanam.